Okay, let's go ahead and understand the second property in the trend, periodic trend. The second property, and this is very important. And guys, also I told all of you that this is going to be 1.5 hour class. So just be there, okay? So just be there, okay? So just be there. This is going to be 1.5 hour class. I have told you this very clearly before the class only. So let's move ahead and understand the property, second property, changes in second property of the periodic table, and that comes as atomic size. This is going to be very interesting. This is going to be very easy. अगर टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, but trust me, with the graphics, with the pictures, I'm going to make it very, very easy and clear for everyone. Okay, okay, let's see this. Okay, what you see here, there are 3 clocks here. Here are three clocks here. Okay, 3 clocks here, and they all like show the same time, right? They all show the same time. Their work is only showing the same time. But what's the difference here? यहाँ पर difference क्या है? अगर वो same time बता रहे हैं 3 clocks में, तो what is the difference you see here? Yes, what is the difference you see here? They are all 3 clocks and they show the same time. So what is this difference you see here? We see the difference of size. Perfectly said. We are very good, Ajit. We see the difference of size. Design we will not take, but we will take the size. Okay. We see the difference of size here. So that is our second property in the periodic table, and that is atomic size. So what we are going to start here is atomic size. Let's understand this very clearly. Okay. So as we have already understood, the size is the fundamental property of the element. Okay, किसी भी मैटर का साइज हमने पढ़ा तो उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है. Here atomic size will be indicated by the atomic radius, उसको हम समझेंगे. But what is atomic size? उसको हम समझते हैं. Suppose this is an electronic configuration of an element. किसी भी एटम और एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. So atomic size is what? Atomic size is the distance between the nucleus. Is the distance between nucleus से distance लेना है, ठीक है? Nucleus से distance लेना है. Is the distance between the nucleus and the outermost shell. And the outermost shell. तो nucleus से outermost shell की तरह के बीच का जो distance होगा, that will tell us the atomic size of the element. मतलब कि यहां पर if number of shell increases, the atomic size will increase. As the number of cell increases, the atomic size will also increase. Okay, is that clear? So atomic sizes depends on 2 factors, and those factors are, okay, since atomic size or atomic electronic configuration is considered as the sphere की तरह हम देखते हैं इसे, तो यहां पर एटॉमिक साइज को हम किस पे कैसे डिनोट करेंगे? एटॉमिक रेडियस से. वी विल इंडिकेट एटॉमिक साइज विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक रेडियस. तो इसे हम क्या करेंगे? रेडियस से, बिकॉज वी टेक हियर. अगर आप इसे स्फीयर कंसीडर करोगे तो ये क्या कहलाएगी? ये रेडियस ही कहलाएगी ना. सेंटर से पॉइंट, किसी भी पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पे, किसी भी पॉइंट पे जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? रेडियस होती है. सो दिस विल बी कंसीडर्ड एज रेडियस. ओके, नाउ हियर एटॉमिक साइज डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. ओके, पहला क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरा क्या है? नंबर ऑफ शेल्स. अभी मैंने बताया, as the number of cells increases, the atomic size will also increase. The atomic radius will also increase. Right? Is that clear? देखो, अब जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पर वो समझते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर कि नंबर ऑफ शेल तो आपको समझ में आ जाएगा. जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ता जाएगा तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा. राइट? नंबर ऑफ शेल बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, एटॉमिक साइज बढ़ेगा. बिकॉज उसकी डिस्टेंस क्या होगी? जैसे यहाँ पर अगर मैं एक और शेल ऐड कर दूं, सपोज करो एक और शेल ऐड कर देता हूं, एक और शेल ऐड कर रहे हैं, सपोज, पार्डन मी विद माय डायग्राम. या एक और शेल ऐड किया तो देखो ये डिस्टेंस क्या हुई? ये बढ़ गया ना. तो जैसे डिस्टेंस बढ़ गया तो एटॉमिक साइज क्या हो गया? बढ़ गया. एटॉमिक साइज विल बी मोर. राइट?
atomic size will be more. Now let's understand effective nuclear charge. Does anyone have any idea what do we mean by effective nuclear charge? What do you mean by effective nuclear charge? Let's hear from some of you. What do you mean by effective nuclear charge? Yes. What do you mean by that? Effective nuclear charge. Let's hear from some of you. Effective nuclear charge. Yes, guys. Anyone? Akash is saying number of electron in a shell, proton in a neutron. Okay, this should be very clear. Okay, this should be very clear for everyone. I'm going to use my, okay, I can either use the blackboard also, but it's fine. Effective nuclear charge, जो न्यूक्लियस होता है उसका जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो किस वजह से आता है? प्रोटॉन्स की वजह से आता है. प्रोटॉन्स, बिकॉज वहां पर क्या होता है? पॉजिटिव होते हैं प्रोटॉन्स. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन्स होंगे वो डिफाइन करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को. उतना ही उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा होगा जितने उसमें प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे. प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे. फिर न्यूट्रॉन्स, ऑफकोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज होता है ना, न्यूट्रल चार्ज होता है न्यूट्रॉन्स का, तो वो तो मास बढ़ाता है, एटॉमिक मास को बढ़ाने में काम आता है, राइट? एटॉमिक चार्ज को नहीं, बिकॉज न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल. ओके, सो यहां पर किस पे डिपेंड करेगा? प्रोटॉन्स पे. इट विल डिपेंड ऑन प्रोटॉन्स, कि प्रोटॉन्स का क्या है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसका. अब देखो समझो, समझना वेरी इंपॉर्टेंट गाइस यहां पर. और बिफोर वी मूव अहेड आई वांट टू टेल यू कि एटॉमिक रेडियस को किससे, किस यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस, बिकॉज सिंस इट इज मेजरमेंट ओनली, सो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस? एनीवन? What will be the unit of atomic radius? I'm going to use my cell phone screen again to explain you this, but I would love to hear from you guys. What is the unit of atomic radius? Atomic radius का unit क्या होगा? Let's hear from some of you. Till then I'll just clean my board. Okay. Use the just a second, here we go. Sorry, yeah, I hope you can see my board again, and I'm going to show that here again. Okay, so मैं यहां पर बताता हूं, समझना बहुत, मैंने इसीलिए बोर्ड का यूज किया. पहले समझते हैं 1 मीटर, समझते हैं हम 1 मीटर. हमें पता है 1 मीटर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, राइट? 100 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है. अगर एक, ये सपोज करो ये एक 1 मीटर की रॉड है, सपोज करो एक 1 मीटर की रॉड है, सपोज करो ये 1 मीटर की रॉड है, राइट? 1 मीटर, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है. अब सपोज करो इसके मैं कितने पार्ट्स कर दूं? 10⁹ पार्ट्स कर दूं. मतलब इस 1 मीटर की रॉड को, इस 1 मीटर की रॉड को मैं, दिस 1 मीटर कैन बी डिवाइडेड बाय 10⁹ मीटर. इस इतने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दूं, देन वी कॉल इट 10⁻⁹ मीटर. इसके सॉरी, इसके 9 पार्ट्स हो जाएंगे, मीटर पार्ट्स हो जाएंगे, तो वी कॉल इट नैनोमीटर. अब हम इसे क्या बोलते हैं? नैनोमीटर. वी कॉल इट नैनोमीटर. इस यूनिट को क्या बोलते हैं? नैनोमीटर बोलते हैं. कहने का मतलब क्या है कि अगर हम 1 मीटर की लेंथ को इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 10⁹ पार्ट्स में डिवाइड कर दें, देन इट इज कॉल्ड नैनोमीटर. क्लियर हुआ? इज दैट क्लियर? कैन यू ऑल सी द वीडियो? को होस्ट का वीडियो चेक करना है बच्चा. कैन यू ऑल सी इट? परफेक्ट. कैन एवरीवन सी इट? परफेक्ट. अब समझना, अगर मैं बोलूं कि इसको 10⁹ में मत डिवाइड करो, क्योंकि आपको पता है एटम क्या है? एटम बहुत छोटा होता है, राइट? एटम बहुत छोटा है. तो आई एम सेइंग डू नॉट डिवाइड इन 10⁹. डिवाइड 1 मीटर इन 10⁻12 के पार्ट्स में. इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इतने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो. एटम इतना छोटा होता है क्योंकि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर, राइट? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस. तो एटम को मैं बोल रहा हूं कि 10⁻12 के पार्ट्स में डिवाइड कर दो. इतने छोटे छोटे पार्ट्स कर दो, इतने छोटे छोटे पार्ट्स, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स कर दो.
तो ये जो यूनिट निकल के आएगी, दिस इज पिकोमीटर, दिस इज पिकोमीटर। पिकोमीटर इसको बोलते हैं एनएम और इसको बोलते हैं पीएम, स्मॉल पीएम, एंड दिस इज पिकोमीटर। सो 1 पीएम, so 1 pm, I will write it clearly. So 1 pm is 10 to the power minus 12 मीटर। तो क्या हमने 1 मीटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 10 to the power 12 पार्ट्स में डिवाइड किया। एंड दिस इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस। सो एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस। इतना छोटा एटॉमिक को, इतना छोटा एटॉमिक को कर देना हमें कि उसका ये रेडियस किस में आ जाए? पिकोमीटर में आ जाए। आ गया क्लियर गाइस? इज दैट क्लियर? क्लियर हो गए सभी को? क्विकली लेट मी नो, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड कि मैंने क्या बोला यहां पर? एटॉमिक रेडियस कैसे चेंज होगा, right? Is that clear? Quickly let me know in the chat box, then we'll come back. Okay, so unit of this. अब समझो, मैं कहता हूं कि जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? मतलब एटॉमिक साइज कैसे चेंज होगा, और जब हम अक्रॉस द ग्रुप आते हैं तो वहां पर एटॉमिक साइज कैसे चेंज होगा। नाउ वी कम बैक टू दैट। ओके, सो आई विल क्विकली शेयर माय screen again. Just give me a second. Okay, here we come back. I hope the screen is clear for everyone. अब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, कैसे चेंजेस आएंगे? लेट्स सी दैट एज वेल। ठीक है, तो अभी अभी हमने डिस्कस कर लिया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम। कितना एक एटम में पॉजिटिव चार्ज होगा, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसी को ही हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, आप समझो, मैं बोलता हूं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों बढ़ता है? बिकॉज वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, तो वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? बढ़ जाएगा, राइट? दैट विल ऑल्सो इंक्रीज, दैट विल इंक्रीज। समझ लो, मैं फिर से बोर्ड पे आ जाएंगे, डोंट वरी। अगर नहीं समझ में आएगा तो आई विल यूज द बोर्ड अगेन एंड एक्सप्लेन यू क्लियरली। ओके, आप समझो कि पहले हम अक्रॉस द पीरियड क्या होगा? नंबर ऑफ शेल तो सेम रहेंगे, नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं अक्रॉस द पीरियड। आई विल शो यू दैट एज वेल। तो लिथियम और बेरिलियम का साइज जो है वो आपको सेम लग रहा होगा, सेम लग रहा होगा। लेकिन आप समझो यहां पर तीन इलेक्ट्रॉन से तो 3 ही प्रोटॉन होंगे, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही प्रोटॉन होंगे, यहां पर 4 प्रोटॉन हो गए हैं। हियर द 4 प्रोटॉन से दिया, एंड नंबर ऑफ शेल इज सेम, स्टिल सेम, नंबर ऑफ शेल इज स्टिल सेम हियर। सो यहां पर क्या चेंजेस आएंगे? ओके, कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल हैपन? ईदर द न्यूक्लियर साइज विल इंक्रीज, सॉरी एटॉमिक साइज विल इंक्रीज और डिक्रीज। व्हाट विल हैपन? कैन यू थिंक ऑफ इट? Either the nuclear atomic size will increase or decrease. What will happen? What could happen? Yes, anyone? Anyone? Anyone, guys? Let's hear from some of you. Someone is saying, Karan is saying atomic size would increase. Okay, perfect. Because here positive charge is increasing. Is that the reason, Karan? Because you're thinking as, okay, yes, perfect. You're thinking as positive charge will increase, so atomic size will also increase, right? Let's hear from some more people, some of you more as well, and then we can see that what could happen. Yes, anyone, guys, quickly? Yes, anyone? चलो समझते हैं इसको, अच्छे समझते हैं, कोई बात नहीं। अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ओके, समझते हैं। यहां पर आपको पढ़ना जरूर है ये क्लियरली, ठीक है? यू हैव टू रीड दिस क्लियरली। आई एम सेइंग एटॉमिक साइज विल डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड. Atomic size will decrease across a period. And how would that happen?
Okay, let's see this. How would that happen? Atomic size will decrease across a period. कैसे होगा? बताओ जरा. कैसे होगा? Can anyone guess? यहाँ पे रीजन भी पढ़ सकते हो, सब कुछ. Can anyone guess? Even like थोड़ा सा लॉजिक लगाओ. बताओ कि एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज और डिक्रीज होगा. चलिए फटाफट, कोई भी बच्चे बता सकता है मुझे. Yes guys, anyone? Guys, quickly. Anyone? I'm waiting. I would love to hear from you guys. Okay, any logic, any idea, if you had pre-reading, anything. Guys, anything. Otherwise, I'm definitely there to explain you this. Don't worry. Akash is saying positive charge is pulled towards the nucleus. Okay. Aditya is saying because of increase and decrease in number of atoms. Okay, Aditya. I'm glad to see some responses and like some logic is put behind that. Amazing, guys. Amazing. Let's hear from some of you more. Yes. Anyone else? और कोई? मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा एग्जांपल रेडी कर रहा हूं जो आपको बिल्कुल परफेक्ट आइडिया देगा कि ऐसा क्यों होने वाला है. बिल्कुल परफेक्ट आइडिया मिलने वाला आपको. डोंट वरी अगर समझ में नहीं आ रहा है, बस जस्ट टेल मी सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. एनीवन? ओके, हियर वी गो. चलिए मैं अभी समझाते हैं आपको अच्छे से. लक्ष्मी सिंह, एज नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज द साइज ऑफ न्यूक्लियस विल इंक्रीज and as positive charge attract negative, so if size is nucleus is more than electron will attract more. Very good, Lakshmi, perfectly said. Okay, amazing Lakshmi, very good. चलिए समझते हैं इसको, अच्छे समझते हैं. ठीक है, I'll share my screen again. Give me a second. Okay, I hope you all can see this again, my board. Yeah, I hope you all can see the board clearly. Now let's understand. Okay, so atomic number of lithium is 3. Atomic number of lithium is 3, right? Guys, can you all see the screen, the co-host's video? Can you all see this? Guys, can you all see this? Perfect, very good, thank you. Yes, beryllium's atomic number, here I am writing atomic number. Okay, atomic number. Beryllium is 4. Period, these are the period 2 elements. सारे के सारे period 2 element हैं. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करने वाला हूँ. जस्ट टिल्ट योर फोन, अगर नहीं क्लियर दिखाई दे थोड़ा सा, या फिर ऐसे ही रहने दो क्योंकि आपको क्लियरली दिखाई देना चाहिए. ठीक है. बोरॉन्स एटॉमिक नंबर इज 5, कार्बन इज 6, नाइट्रोजन इज 7, ऑक्सीजन इज 8 एंड फ्लोरीन इज 9. ये सभी को पता है एटॉमिक नंबर. अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2 1, इसका हो जाएगा बेरिलियम का हो जाएगा 2 2, बोरॉन विल बी 2 3, कार्बन विल बी 2 4, and nitrogen will be 2 5, oxygen will be 2 6, and fluorine will be 2 7. I hope this is clear. यहां तक क्लियर हो गया सभी को, राइट? अब न्यूक्लियर चार्ज बता दो. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो बोला मैंने वो कितना हो जाएगा. अगर ये किसी ने भी गेस किया ना, आई एम गोना गिव अ चॉकलेट टू दैट पर्सन. पक्का, दिस इज अ चॉकलेट थिंग, चॉकलेट प्रॉब्लम. व्हाट विल बी द न्यूक्लियर चार्ज? Nuclear charge. Yes, anyone? Let's see if anyone can guess. What will be the nuclear charge to this?
यस एनीवन? न्यूक्लियर चार्ज, आप सभी को पता है न्यूक्लियर चार्ज कहां से आता है, किससे आता है? प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से, किससे आता है? एटम की बात कर रहे हैं यहां पर। चलिए एनीवन? न्यूक्लियर चार्ज, हियर आर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज 3। एटॉमिक नंबर हमको पता क्या होता है, वो ईदर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट? पता है हमें ये? यस लक्ष्मी, यू हैव सेड completely correct. Number of electron will be equal to the number of protons. Very good Lakshmi. I wanted to hear from more people as well, but I think none of you else has responded except the Lakshmi. Okay, so here the positive number of proton कितने हो जाएंगे? 3. So its positive charge will be 3 only. Beryllium's number of proton will be 4, so its positive charge will be 4. Its number of proton will be 5, so positive charge will be 5. Number of proton will be 6, to the positive charge 6. Number of नाइट्रोजन के प्रोटॉन्स कितने आएंगे? 7, तो पॉजिटिव चार्ज 7. 8 तो पॉजिटिव चार्ज 8. फ्लोरीन में 9 एटॉमिक नंबर, 9 प्रोटॉन्स, तो 9 पॉजिटिव चार्ज. इज दिस क्लियर? अभी सही है? नंबर ऑफ शेल सभी में सेम रहेगी, बिकॉज देख सकते हो यहाँ पर 2 सभी में आ रहे हैं शेल. नंबर ऑफ शेल क्या होंगे? सेम. नंबर ऑफ शेल सेम फॉर एवरीवन, सेम रहेंगे सभी के लिए, राइट? तो दो ही चीजों में मैंने बताया कि दो ही चीजों में डिपेंड करता है. एक तो नंबर ऑफ शेल पे, और दूसरा है नंबर ऑफ इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, राइट? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे यहाँ पर नंबर ऑफ शेल तो सेम हो गया, अब बचा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अब देखो, जिसका जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, व्हाट विल इट डू? क्या करेगा वो पुल करेगा. क्या करेगा? देखो समझो, कार्बन का, पहले हम बोरॉन का बना लेते हैं. सपोज करो बोरॉन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ये न्यूक्लियस हो गया, उसके पहले वाले में 2 आ जाएंगे, और थर्ड दूसरे सेल में कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे. ठीक है, अब इसी में कार्बन का डायग्राम बना लेते हैं. समझना ध्यान से, ये न्यूक्लियस बना दिया, पहले सेल में 2 आ जाएंगे, और दूसरे सेल में कार्बन के कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, राइट? तो 1 2 3 4. क्या होने वाला है? बताओ जरा. कि जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, जब पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो वो क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखेगा. क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा. तो जो कार्बन का डायग्राम है वो ऐसा ना दिख के, वो कैसा दिखेगा? एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, उसका थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा छोटा हो जाएगा. क्या हो जाएगा? थोड़ा सा छोटा हो जाएगा बोरॉन की कंपेयर में. 1 2 3 4, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? प्रोटॉन्स, द पॉजिटिव चार्ज इज अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स. हियर द प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज इज अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स. तो ये वाला डायग्राम ना बनके ये वाला करेक्ट लिया जाएगा. तो यहां पर ये होगा कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड. atomic radius, okay, radius decreases across the period, across the periods. ओके, एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इट विल डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड्स. एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड, बिकॉज यहां पर क्या होगा? एज द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन और इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट. न्यूक्लियस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को, न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? खींचेगा अपनी की तरफ. इट विल पुल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट. तो जैसे जैसे जिसका जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, उसमें उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा. जिसका जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसका उतना पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा. तो उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? इट विल पुल टुवर्ड्स इट. So the atomic radius will decrease across the period. So the atomic radius will decrease across the periods. Is that clear for everyone? आगे समझ में? Quickly let me know guys if you have understood. Yes, quickly let me know.
I will just put the video off now. And I'll share my screen again. So as I said, atomic size क्यों कम हो रहा है? ये रीजन मैंने एक छोटा सा रीजन लिखा है. You can see that, right? You can read that again and let me know quickly whether you have got it or not. Quickly. Yes, quickly let me know. Clear, guys? वो आकाश न्यूट्रॉन को हम लेते हैं एटॉमिक मास को बताने के लिए. एटॉमिक मास जब बताना होता है तब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं. बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे बच्चा अरेंज की गई है, एटॉमिक मास पे नहीं की गई है, राइट? सो हियर वी आर नॉट टेकिंग एटॉमिक मास इन कंसिडरेशन, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं ले रहे हैं. यस गाइस, क्विकली यहां पर देख सकते हो, यहां पर मैंने जो बनाया लिथियम का साइज बेरिलियम से ज्यादा लग रहा है. लिथियम का साइज बेरिलियम से ज्यादा है क्योंकि बेरिलियम की क्या है, 4 पॉजिटिव 4 इसका एटॉमिक नंबर है, 4 प्रोटॉन्स आर देयर, 4 प्रोटॉन्स आर देयर. ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा बहुत ज्यादा हो जाएगा. बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज, राइट? इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन को वो खींच लेगा, अपनी की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी की तरफ खींच लेगा. तो उसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा. द साइज ऑफ द element will become, not element, sorry, electronic feature, the size will become, radius will become small than the lithium here, between the lithium and beryllium. So is that clear? Quickly let me know guys, जल्दी से बताओ फिर हम आगे बढ़े. तो ऐसा एटॉमिक साइज दिखेगा सभी को. इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? परफेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं और ऑलमोस्ट डन की तरफ चल रहे हैं हम, ठीक है? तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने रीजन लिख दिया है और मैं ये दीज पीपीटीज आई एम गोइंग टू शेयर एज वेल, तो आपको क्लियर होता रहेगा, डोंट वरी, यू विल हैव द नोट्स फॉर विद यू टू राइट देम डाउन. ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर. अभी मैं आपको एक और दिखाने वाला हूं जहां पर आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा. डाउन द ग्रुप बात करते हैं. व्हाट विल हैपन डाउन द ग्रुप? अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तब एटॉमिक साइज में क्या डिफरेंस आएगा? यहां पर देख सकते हो मैंने एटॉमिक साइज, यहां पर रेडियस लिखा हुआ है, बुक से ही लिया है. यू कैन हैव अ लुक, यहां पर एटॉमिक साइज क्यों बढ़ कम रहा है और डाउन द ग्रुप क्या होगा. लेट्स टॉक अबाउट डाउन द ग्रुप. व्हाट विल हैपन डाउन द ग्रुप? What will happen down the group? Atomic size down the group. Yes, anyone? Now you can think, you can put some logic. What will happen with the atomic radius down the group? अगर हम ग्रुप वाइज जाते हैं नीचे की तरफ तो क्या होगा? Across the period नहीं, अब डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं हम लोग. अगर डाउन द ग्रुप जाते तो what will happen to atomic size? Whether it will increase, decrease, what will happen? Someone is saying it will increase. Okay, let's see that. समझेंगे, उसे भी समझेंगे, राइट? चलिए समझते हैं. मैं फिर से वीडियो शेयर करने वाला हूं, गिव मी अ सेकंड. आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन अगेन. ओके, सो एटॉमिक साइज और रेडियस डाउन द ग्रुप. ओके, दिस इज नॉट द डाउन द ग्रुप. नाउ ग्रुप में अगर हम जाते हैं तो क्या होगा? चलिए दो एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं, दो ग्रुप के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 लिख लेते हैं, ठीक है? समझना, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हम लिखते हैं यहां पर, समझना, ठीक है? चलिए समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड. ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर लिथियम. मैं हाइड्रोजन को नहीं ले रहा हूं, हाइड्रोजन पता है एक्सेप्शन है वो, बिकॉज वो वहां पर की 17 ग्रुप के साथ भी प्रॉपर्टी शो करता है, बट हम ठीक है कंसीडर कर लेते हैं, बट अभी मैं यहां पर नहीं ले रहा हूं, ठीक है? तो लिथियम और दूसरा क्या है, ली हलीना की रब से फरियाद. दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 1. सेकेंड ग्रुप
बेमक्का सरबारा. I remember this. I remember the elements name with this only. Bemakka Sarbara. These are the group 2 elements. Okay. Sorry. I should have not written these here. यहाँ पे मैंने कुछ और लिखने के लिए बनाया था ग्रुप ये. Sorry, इनको यहाँ नहीं लिखना है. यहाँ पे लिखना है. बेमक्का सरबारा. स्ट्रैंथियम और ये बैरियम और ये रूबीडियम. ओके, रेडियम. दिस इज फ्रांसियम. सो ये है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स. ओके, क्लियर. लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ. इसका एटॉमिक नंबर कितना है? लिथियम का 3, सोडियम का 11, ठीक है, पोटेशियम का 19, रूबीडियम का 37, दिस इज 37. ओके, और सीजियम का 55. इतना ही लेते हैं, ठीक है. बेरिलियम का अभी भी पड़ा 4, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20 और ये सिरोटियम कितना था? 38 था. बैरियम 56 है. इतना ही लेते हैं, ठीक है. समझिए, ध्यान समझना. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 1. इसका हो जाएगा 2 8 1. इसका क्या हो जाएगा? 2 8 और 8 1. इसका क्या हो जाएगा? 2 8 18 28. फिर से 8 आ जाएगा, राइट. और फिर 1. इसका क्या हो जाएगा? 2 8 18 18 36 54. और ये कितना हो गया? जल्दी बताओ. 8 1. सही है, करेक्ट है. यहां पर बैरियम का समझते हैं. इसका हो जाएगा 2 2. इसका हो जाएगा 2 8 2. इट विल बी 2 8 8 2. इट विल बी 2 8 18. देन 8 और 2. It will be 2 8 18 18 8 and then 2, right. ये बन गया. देखो अब यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? एटॉमिक साइज कैसे डिपेंड करेगा और कैसे चेंज होगा? क्या सेम होगा, चेंज होगा, क्या होगा? व्हाट विल हैपन? क्या होगा? चलो बताओ. यहां पर क्या हो रहा है? नंबर ऑफ शेल देखो, यहां पर 2 शेल हैं. नंबर ऑफ जो शेल्स हैं वो कितनी है? 2 है. यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, यहां पर 5 है, यहां पर 6 है. यहां पर पॉजिटिव चार्ज तो हो रहा है, बट यहां पर नंबर ऑफ शेल भी बढ़ रहे हैं. यहां पर नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं. अक्रॉस द ग्रुप क्या हो रहा है? अक्रॉस द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस. नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस अक्रॉस द ग्रुप. तो नंबर ऑफ शेल क्या करेगा? यहां पर डोमिनेट कर जाएगा न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर. सो नंबर ऑफ शेल नंबर ऑफ शेल विल डोमिनेट ओवर न्यूक्लियर चार्ज. यहां पर क्या हो जाएगा? डोमिनेट कर जाएगा न्यूक्लियर चार्ज पे, क्योंकि 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज. किस पे? या तो नंबर ऑफ शेल पे, या तो रेडियस डिपेंड करता है 2 फैक्टर पे, न्यूक्लियर चार्ज पे और रेडियस शेल पे. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नंबर ऑफ शेल. यहाँ पर नंबर ऑफ शेल तो बढ़ा, लेकिन साथ ही साथ न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा, लेकिन नंबर ऑफ शेल क्या करेगा? डोमिनेट करेगा. इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा? एटॉमिक जो रेडियस है will increase. So we can say atomic radius directly proportional to shell, number of shell. ये हो गया हमारा. तो बेसिकली डाउन द ग्रुप व्हाट विल हैपन? डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज. डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज. अभी क्लियर हुआ सभी को? वंस अगेन आई विल शो इट टू यू क्लियरली. आ गया समझ में? इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? सो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज. Guys, is this clear for everyone? Quickly let me know in the chat box.
Is that clear? Down the group, the atomic size or atomic radius will increase. Yes, class, everyone, let me know if you have got this clear. I'll put my video off now, and I am taking the pictures of these, and I'll share this at the end of the classroom also. Don't worry, okay? I will share this at the end of the class. So I'm going to back to the PPT again, and I'm going to show you this here. Atomic size increases down the group because new cells are being added. If you can see this clearly, atomic size increases down the group because new cells are added. And here the best part I'm going to show you here is for today's class is this. You can see this, how the atomic size will be like. You can see this. Inert gases का atomic size ज़्यादा different नहीं करता, but you can see this. Can you? How interesting is this? You can see it here. How interesting. Okay. कितना interesting लग रहा होगा? Right? Is the screen clear? सभी को दिखाई दे रहा? हाँ, थोड़ा स्क्रीन क्लियर नहीं तो डोंट वरी, आई विल शेयर द पीपीटी एंड यू विल गेट दिस, यू विल गेट टू सी दिस. बट यहाँ पर साइज की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ साइज को देखो कैसे यहाँ पर डाउन द ग्रुप और ये बढ़ रहा है. राइट, ये देखो ये साइज बढ़ रहा है. डाउन द ग्रुप इट इज इंक्रीजिंग, बट अक्रॉस द ग्रुप सॉरी अक्रॉस द पीरियड इट इज डिक्रीजिंग. इट इज डिक्रीजिंग अक्रॉस द पीरियड, इट इज डिक्रीजिंग. Is this perfectly clear for everyone? I'm going to ask this. Okay, the efforts I have put here to explain you, is that perfectly clear for everyone? Atomic size perfectly clear, I'm asking. No doubt, nothing, just perfectly clear. Tell me quickly, is that perfectly clear for everyone? Yes guys, perfectly clear, pakka? Because I'm going to just take 5 more minutes and then we will end the class. Just 5 more minutes and you have to hang with me till 5, like you have to be with me just 5 more minutes. Perfectly clear for everyone? Thank you, very good. Okay, now last part of this. Okay, so we can conclude. Thank you Karan, thank you Akash. We can conclude, so we can conclude atomic size across the period decreases, right? Or down the group it increases, and down the group it increases. Across the period it decreases and down the group it increases, and we can conclude that, right? Is that correct? Is that true? Clear? सभी को जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो. So we have finished 2 properties today. जल्दी से बता दो if that is clear for everyone. Clear? Guys, is that clear? Perfectly clear? Last? Okay, amazing, amazing. Thank you Lakshmi, Ashraf. Okay, so here we come to the last property of the periodic trends. Last property in the periodic trends which changes, okay, in the modern periodic table. Last property we come here, and that is metallic and non-metallic character. And you already know this. The very interesting part is that you already know about it. Okay, आप सभी को पहले से पता है कि क्या होता है, ये पहले से क्या होता है आपको. We all know that. Okay, we all know that कि क्या है, what is metallic and non-metallic property. I want you all to read what is written on the screen. I want you all to read that clearly, what is written on the screen. सभी एक बार 1 मिनट के लिए पढ़ लो जल्दी से, and then I'll explain that. Have a look, read it once clearly, and then I'll explain that quickly. पढ़ लो सभी. Yes, let me know once you are done reading this part. Let me know once you're done reading the part. Show me thumbs up, anything.
Karan is done. I'm waiting for others. If you understand or not, it's completely fine. Don't worry. Okay. I'm going to make you that, make you understand that. Don't worry. Let me know clearly, guys. Understood? Perfect, perfect. Let's wait for a few more people and then we can go ahead. चलो, परफेक्ट परफेक्ट. चलिए समझते हैं. देखिए अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है? अच्छे समझते हैं. वील अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली. बहुत अच्छे समझेंगे इसको, ठीक है? Just give me a second. I'm just arranging my board till then. Just give me a second. Making some arrangement with my board. Okay, so it can be perfectly clear for everyone as well. Just give me a few seconds and then we go ahead. समझते हैं, ठीक है? एक सेकेंड और, just one more second. Okay, I'm going to share the board screen again and here we go. Okay, this is what periodic table looks like, right? This is what periodic table looks like. ऐसा दिखता है यहाँ पर हमारा, right? ऐसे ही दिखता है ना periodic table, right? I'm going to put the in here. This is how it looks like, right? यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता है, फिर लिथियम आता है, हालिना, सोडियम, यहाँ पर फिर बेरिलियम, बे मक्का एंड मैग्नीशियम. सिमिलरली यहाँ पर से क्या स्टार्ट होता है? सॉरी, यहाँ पर दो ही आते हैं ऐसा. यहाँ पर आपका बोरॉन आ जाता है, फिर कार्बन आता है, फिर ऐसे नाइट्रोजन आता है और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन. ऐसे ही ये इनर्ट गैसेस का कॉलम होता है. हीलियम, नियॉन, आर्गन, ऐसे होता है, राइट? ये होता है कॉलम. ऐसे दिखता है ना पीरियोडिक टेबल, राइट? इज दैट हाउ इट लुक्स लाइक? ठीक है, ऐसे दिखता ना. तो एक और चीज आपने नोटिस की होगी, एल्यूमिनियम के बाद का जो जिगजैग लाइन स्टार्ट होता है, जिगजैग लाइन, ऐसे जिगजैग लाइन स्टार्ट होता है, राइट? ऐसा स्टार्ट होता है, ऐसे जिगजैग लाइन स्टार्ट होता है. देखा है जिगजैग लाइन जो सेपरेट करता है, जिगजैग लाइन देखा होगा पीरियोडिक टेबल. अगर टेक्स्ट बुक सामने तो समझ में आ रहा होगा. जिगजैग लाइन का क्या काम है कि जिगजैग लाइन के इस साइड के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं. और जिगजैग लाइन के इस साइड के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं. ये सभी को क्लियर होगा, हमने पहले ही स्टार्टिंग में ही पढ़ा था. और जो बीच के एलिमेंट्स होते हैं, जो जिगजैग लाइन के बीच वाले एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं. जो जिगजैग लाइन में ही आते हैं वो क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं. दोज आर द मेटलॉइड्स which shows the property of the elements and non-metals both, right? So we can say right, sodium, magnesium are towards the left. कि कुछ एलिमेंट्स का होता है towards the left है, कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटलिक एलिमेंट्स जितने भी सल्फर है, क्लोरीन है, those are the. अच्छा वेट, I'll show you the टेक्स्ट बुक ओनली. टेक्स्ट बुक में ज्यादा इजी हो जाएगा. एक सेकंड, मैं टेक्स्ट बुक रखता हूँ सामने, वो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड सो यू कैन सी दैट क्लियरली. अभी देख रहा होगा सबको, दिखा? अभी देखो, दिख रहा होगा क्लियर, राइट? अब देखो, समझो कि यहां पर क्या हो रहा है. ये जिगजैग लाइन हो गया, ये जिगजैग लाइन है. तो इस साइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये क्या है? मेटल्स हैं. दीज आर ऑल मेटल्स एंड दीज आर ऑल नॉन मेटल्स. ये जो ब्लू वाले कलर के दिख रहे हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनियम, और ये कौन सा है? टिन, सॉरी एंटीमनी, और ये टेलिरियम, और यहाँ पर बिस्मथ नहीं आता, पोलोनियम आता है, और ये आता है. दीज आर द मेटलॉइड्स. दीज आर व्हाट? मेटलॉइड्स. इनको क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स बोलते हैं. सो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है? ये क्लियर हुआ सभी को? मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स कैन बी गैस और लिक्विड. नॉन मेटल्स कैन बी गैस, ये वाले गैस होते हैं फ्लोरीन तक, और ये वाले कुछ इसमें से लिक्विड भी होते हैं. कुछ गैस कुछ लिक्विड, पता है ना आपको? कुछ गैस कुछ लिक्विड. नॉन मेटल्स कैन बी गैस और लिक्विड. मेटल्स विल ओनली बी सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी.
मरकरी बस क्या होता है, वो मरकरी किस होता है, लिक्विड होता है, बाकी सारे मेटल्स किस में है, सॉलिड स्टेट में है। ऑल मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट, ओनली द नॉन मेटल्स कैन बी गैस इन इधर गैस और लिक्विड, एंड दीज आर द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। ये क्लियर सभी को, राइट? ये हो गया क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या है? मेटेलिक कैरेक्टर ये है कि देखो, पहले एक एग्जांपल लेते हैं, लिथियम लेते हैं। लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 1। तो ये क्या करेगा, ये डोनेट करेगा ना, क्योंकि डोनेट करना इसके लिए इजी है। डोनेट करेगा तो इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसीलिए लिथियम को क्या लिखेंगे, +1। ध्यान देना, लिथियम का लिखेंगे +1, क्योंकि डोनेट किया इसने, क्या किया, डोनेट किया। फॉर मोर एग्जांपल, मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2 8 2, so it will donate 2 electrons, so its valency will be 2 and it will get 2 positive charges, sorry 2 positive charge। इसको डोनेट किया तो 2 आएगा। एंड जो मेटल्स क्या बोलते हैं, मेटल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स and form or gain, you can say gain, you can simply say gain, metals donate electrons and gain positive charge called as cations, called as cations। इन्हें क्या बोलते हैं हम, cations बोलते हैं, cations। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं, cations बोलते हैं। डोनेट करता है, अरे क्या हो गया, सॉरी, हाँ अब दिखेगा। क्या करता है, मेटल्स डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एंड गेन पॉजिटिव। अजीत एक फर्स्ट या सेकंड क्लास में क्वेश्चन पूछा था, क्या मेटल्स डोनेट करते हैं सिर्फ पॉजिटिव चार्ज? यस, मेटल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड गेन पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड एज कैटायंस। इनको क्या बोलते हैं, कैटायंस। वही अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, सपोज करो नॉन मेटल्स की बात करते हैं, कार्बन ले लेते हैं, कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है, समझना। कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का है 6, कार्बन नॉन मेटल में नहीं आता, वो इट कैन डोनेट, ईदर कैन डोनेट और वो कर सकता है। नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7 7, its electronic configuration will be 2 5, so it will take 3 electrons, right? It will take 3 electrons, it will take 3 electrons, so इसको चार्ज क्या मिलेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए इसने, 3 इलेक्ट्रॉन्स को it had taken, so it will get -3। so नॉन मेटल का क्या काम है, नॉन मेटल्स टेक इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल्स टेक इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन निगेटिव चार्ज। क्या मिलता है उनको, निगेटिव चार्ज कॉल्ड एज अनायंस। अनायंस उनको क्या बोलते हैं, अनायंस बोलते हैं। तो नॉन मेटल्स का क्या काम है कि दे टेक इलेक्ट्रॉन्स, okay, they take electrons and gain negative charge and they are called as anions। is this clear? जल्दी से बताओ, is this clear guys? ये समझ में आया? जल्दी से बताओ मुझे फटाफट, तभी मैं आगे बता पाऊंगा। 1 मिनट का और, सॉरी just 1 more minutes concept left, my cell phone fell away। is this clear for everyone? I will click pictures and send you on the group also। is this clear कि मेटल्स डोनेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलेंगे, कैटायंस बोलेंगे। और नॉन मेटल्स जो होंगे वो दे विल टेक द इलेक्ट्रॉन्स एंड दे विल गेट नेगेटिव चार्ज एंड दे विल बी कॉल्ड एज एनायंस, राइट? इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? जल्दी से बताइए मुझे, ओके पक्का क्लियर है सभी को? सो देखो एक और वर्ड मैं यूज करने जा रहा हूं। सो जो मेटल्स हैं who donate the electron and form the positive charge, they are called cations, and this property cation formation की this property
property is known as this property is known as electropositivity. This property is known as electropositivity. इसको क्या होता है इलेक्ट्रो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज ले रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. द मेटल्स, दिस इज फॉर मेटल्स, क्योंकि मेटल्स क्या करते हैं, डोनेट करते हैं. और नॉन मेटल्स क्यों कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स बिकॉज दे गेन द इलेक्ट्रॉन्स. क्या करते हैं वो, गेन करते, सॉरी हाँ, दे टेक द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, दे टेक द इलेक्ट्रॉन्स, दे गेन द इलेक्ट्रॉन. सो दिस property of gaining negative charge, this property of gaining negative charge is called electronegativity. बिकॉज नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का निगेटिविटी हो रहा है. ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का निगेटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि वो दे हैव टेकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. बिकॉज देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा बिकॉज प्रोटॉन्स बचेंगे. ठीक है, तो प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, मतलब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आएगा. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो अब हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि मेटेलिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या रिलेशन है एंड हाउ डू दे इंक्रीज और डिक्रीज अक्रॉस द ग्रुप और डाउन द ग्रुप. ओके, नाउ वी कम टू दैट. इज दिस क्लियर? जल्दी से बताइए, 2 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है. इज दिस क्लियर? इट्स जस्ट 2 more minutes left for this topic. Quickly let me know if you have understood this, what I just said. Electronegativity, negative charge for non-metals. Electropositivity, positive charge metals. क्लियर है सभी को? जल्दी से बताइए. 2 more minutes and then we are completely clear with the concept. Perfectly clear? Very good. चलिए, let's come back to, I'll stop the video and I'll go back to the PPT. Okay, I'll go back to the PPT. I'll click the picture and I'll share this at the end of the classroom as well, so don't worry about the pictures. Okay, here we go. Yes, give me a second, I'll just put the PPT on again. So here we come. The definition I had already written. The definition I had already written here कि metals की tendency क्या है? Metals have the tendency to lose the valence electrons. Lose करते हैं और they form the cations. Having यहाँ पर क्या? And they gain the electropositivity. और what do they gain? They gain the electropositivity, right? एक सेकेंड. हाँ, सो दे गेन द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यहाँ पर. ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट. समझना, ठीक है, ध्यान सुनना. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था कि टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग, अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द बॉन्ड्स. यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके, मतलब दे टेक. ओके, दिस इज. सो मेटालिक कैरेक्टर क्या है? मेटालिक कैरेक्टर इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. मेटालिक कैरेक्टर क्या है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. Metallic character is what? Tendency to lose electrons. That is electropositivity. That is electropositivity. और non-metallic character क्या हो जाएगा? Tendency to gain electrons. Non-metallic character क्या हो जाएगा? Tendency to gain electrons. Tendency. I'll just quickly write this down. Tendency to gain electrons, that is non-metallic. Okay, clear हो गया? Tendency to gain electrons, that will be non-metallic. तो अब बताओ मुझे across the group क्या होने वाला है, down the group क्या होने वाला है? Yes, so across the group क्या हो जाएगा? Across the group यहाँ पर क्या होगा? सब में क्या बढ़ेगी? सब मेटल्स में यहाँ पर क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनके बढ़ते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो उनकी वो लूज ज्यादा करेंगे. जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा लूज करेंगे, तो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. क्योंकि क्या होगा?
दिस इज, अभी ठीक है, एक बार समझ लो, रीड कर लो, पहले समझ लो थोड़ा सा आप भी. I think 10 minutes will be left for this class as well. So this will decrease, और यहां पर देख लो कि it will increase. Okay, so here we come to the end of the class. 1 second, I'll just stop the recording.